کہ میرے سوا ہر آدمی کا احتساب ہوگا. پیغمبروں کو وہ نہیں ملا, بڑے بڑے پیغمبروں کو, آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, زکریا علیہ السلام. یہاں یار لوگوں نے مل کر آرمی چیف اور پریزیڈنٹ زرداری کو اب سب کچھ سے استثناء, پہلے بھی یہ حکومت قاتل ہے, قاتلوں کی حکومت ہے, دہشت گردوں کی حکومت ہے. انہوں نے 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے بندوق کے زور پہ ملٹری کی طاقت سے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے سپریم کورٹ کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے اور یہاں نعرے بازی کی جا رہی ہے. مائک تو سر ادھر ہے, ادھر تو نہیں ہے, ادھر ڈائز لگا ہوا ہے. میڈیا کے دوستوں, پاکستان نے 27ویں ترمیم کے خلاف وکلاء, دانشوروں, صداعت کے ماہرین, جرنلسٹوں سب کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ ایک قومی کانفرنس ہوگی, تحریک تحفظ پاکستان بلائے گی, اس میں ججز, جرنلسٹ, دانشور لوگ جمع ہوں گے اور پھر اکٹھا ہم سب نے اس بدبختی کے خلاف جو 3 دن پہلے پارلیمنٹ میں ہوئی. ہم مسلمان ہیں, قرآن حکیم پہ یقین رکھتے ہیں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں پیچھے قرآن کریم میں اللہ پاک واضح اعلان کرتا ہے کہ میرے سوا ہر آدمی کا احتساب ہوگا. پیغمبروں کو وہ نہیں ملا, بڑے بڑے پیغمبروں کو, آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, زکریا علیہ السلام. یہاں یار لوگوں نے مل کر آرمی چیف اور پریزیڈنٹ زرداری کو اب سب کچھ سے استثناء, پہلے بھی یہ حکومت قاتل ہے, قاتلوں کی حکومت ہے, دہشت گردوں کی حکومت ہے. انہوں نے 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے بندوق کے زور پہ ملٹری کی طاقت سے, اور عمران خان کی پارٹی کا مینڈیٹ چھینا. ان کی اقلیتوں کی سیٹیں بالکل خیرات کی طرح بانٹی گئی, کسی پارٹی نے اس سے لینے سے انکار نہیں کیا. جعلی 2/3 میجارٹی کر کے آئین کی بنیادوں پہ حملہ آور ہوئے. یہ پارلیمنٹ اگر 100% بھی ایک پارٹی کے پاس ہو, وہ آئین میں ایسی ترمیم کا حق نہیں رکھتے کہ اس کی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیں. بنیادی ڈھانچہ کیا ہے کہ یہاں سول سپرمیسی ہوگی, آئین دست ہوگا, فوج, عدلیہ سب اپنے اپنے ماحول میں آزاد ہوں گے, بلکہ they must be subservient to the elected parliament. اس پہ حملہ ہوا ہے. شہباز اور پیپلز پارٹی اور ہمارے فوجی, ان فوجیوں کے جو اپنی حلف کا احترام نہیں کرتے. ہم سے بار بار آئین کے دفاع کا حلف لیا گیا ہے. آئین وائلیٹ ہوا ہے, آئین ایبروگیٹ ہوا ہے, آئین کو برباد کر دیا گیا ہے. ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ اپنے اس سماجی معاہدے کو بچانے کے لیے نکل پڑے. اگر ہم نے دیر کر دی, خدا نخواستہ پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے, وہ اعلان کریں گے کہ نئی انسیساز اسمبلی, آپ نے یہ آئین پھاڑ دیا ہے, ہم یہ نہیں مانتے, نیا آئین. پاکستان بہت بڑے بحران میں مبتلا ہوگا. ہم نے نقشی سگالیاں دینی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والا جمعہ یوم سیاہ ہوگا تمام ملک میں. انشاءاللہ تمام ملک میں ہم سیاہ جھنڈے جلائیں گے, جمعے کی نمازوں میں ہم نکلیں گے جتنی ہماری طاقت ہوئی. میری ریکویسٹ ہے, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سیاہ جھنڈیوں کا اور سیاہ دن کا اہتمام کریں. ہر جمعے کی نماز میں ہم علماء کرام سے کہتے ہیں, ہمارے لیے نہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے نہیں, عمران خان کے لیے نہیں, ایمان کے لیے, قرآن کے لیے, اس کفر کو, اس شرک کو, اس کا راستہ روکو جس میں چور, ڈاکوں, قاتلوں کو عمر بھر کا استثناء دیا جا رہا ہے. یہ ظلم ہے ہر عالم دین کا, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مشرق سے ہو,
یہ ذمہ बनती है کہ जुमे की नमाज में इसको गैर इस्लामी, गैर जमहूरी, गैर आइनी ऐलान करें और यौम सियाह के लिए लोगों को तैयार करें। हमने निकलना है इंशाअल्लाह। हम न किसी को गालियाँ देंगे, न किसी को बुरा भला कहेंगे। आवाम की ताकत से पुरअमन अंदाज में हमने इस हुकूमत को, शहबाज एंड कंपनी को फारिग करना है और यहाँ एक जमहूरी आइन के ज़रिए, जमहूरी हुकूमत के ज़रिए एक नए जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करें। खुदा आपका भला करे। God bless you। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद। 29वीं तरमीम कबूल होगी। आइन एक हसास मामला होता है। खुदा के लिए जितना डैमेज होना था हो चुका है। सब लोगों को लेके चले, आगे बढ़े, लेकिन इस तरह से नहीं। आइन के साथ खिलवाड़ ना करे। आइन एक मुक़द्दस किताब है। आइन एक मुक़द्दस दस्तूर है जिससे पाकिस्तान के सारे अवाम मुत्तफ़िक होते हैं। इससे अदलिया का बहाल होता है, इससे इदारे एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, इस पे सारे इंस्टीट्यूशंस रखते हैं। हम उस मुल्क के रखवाले हैं, जो लोग कुर्बानियाँ देते हैं उनको सराहते हैं और हम चाहते हैं मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में लोगों के लिए खुशहाली हो, ये ईमान मजबूत हो, ये हमारे सारे इदारे मजबूत हो, ये सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, ये आज़ाद हो, इनके जजेस आज़ाद हो। ये अवाम के पैसों से वहाँ बैठे होते हैं जाके हर इदारा है और चाहे इवन सुप्रीम कोर्ट है। लोगों को बड़ी शिकवे शिकायत रही हैं और सही रही हैं, अदलिया से बहुत ज़्यादा शिकायत रही है। लेकिन इतना मतलब ये नहीं कि आप सारों पे पानी फेंक दें। उसमें हमेशा से होता है आप रिफॉर्म लेके आएँ, उनको बेहतर से बेहतर करें, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो सूबों के हकूक़ है, चाहे वो नए सूबे हैं, लेकिन लोगों को ऑन बोर्ड ले ले और आगे बढ़े। 10वीं तरमीम पास हो चुकी है, 28वीं की बात अभी से सुनाई देनी शुरू होगी है। आपका वोटर, आपका सपोर्टर आपकी तरफ देख रहा है कि क्या लाया अमल देगी उसको। हुकूमत 27वीं से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात शुरू कर रही है। तो आपका क्या लाया अमल का बताइएगा। आप अदालत पर तो बात करते हैं, 243 जो आर्टिकल है उस पर बात नहीं करते हैं, क्या वो पीटीआई को कबूल है? नहीं, देखो 243-248 की बात नहीं है। मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि जरदारी के ख़िलाफ़ आप ट्रायल चलाएं और वो कन्विक्टेड हो, और ये बात है। लेकिन ये लोग अपने आप को कानून से जो बालातर समझेंगे, अगर जरदारी साहब समझते हैं कि मैं कानून से बालातर हूँ और मेरे किसी किस्म की गिरफ्त नहीं होनी चाहिए, तो आप अवाम की नज़रों में गिर जाते हो। देखो ना, ये अवाम है, ये ईमान अवाम का है। इसमें मैं हूँ ना हूँ, आप हो ना हो, यहाँ तो अवाम की जो नुमाइंदे हैं वही आएंगे ना। ये अवाम की नुमाइंदगी रहे। देखो पार्टियाँ बनती जाएगी, मटती जाएगी, हुकूमतें आएगी जाएगी, लेकिन मुल्क रहे, ईमान रहे, जमहूरियत रहे, पाकिस्तान रहे। ये भी पीटीआई एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। 27 सेकंड की जो मार्च आप करने लगे हैं, खान साहब ने तारीख में इतना बड़ा मार्च या इतना छोटा सा मार्च कभी नहीं किया। देखे, बात ये नहीं होती कि आप मार्च जो है ना, गांधी ने किया था 60 के ख़िलाफ़, जब पहले टैक्स लगा था, ये दुनिया की तारीख बनी थी। वो 300 किलोमीटर दूर गया, उन्होंने कहा मैं वहाँ दरिया से लेके आऊँगा पर मैं टैक्स नहीं दूँगा। बात दरअसल ये नहीं है कि आप कितना आगे मार्च करते हैं, ये हमारा सिर्फ वहाँ तक है। ये ऑब्वियसली 30 सेकंड ही सही, लेकिन ये आपका एक प्रोटेस्ट होता है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आईनी तरमीम को जिस तरीके से की गई है या जो इसके कंटेंट से हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और मेरा ख्याल है तो मार्च कर रही है, लेकिन आवाम को कब तक निकालने का इरादा है? देखिए, आवाम जानती है, समझती है, और जब इंशाल्लाह ताला आवाम समझती है कि अभी वक्त है, तो आवाज़ भी हुकूमत आवाम भी ये उठेगी। नहीं, आवाम देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम सिस्टम के अंदर रहते हुए इसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये चेंज तो तहत बाला करके कोई वो चीज़ नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जी इसको करें। फौरन से पार्लियामान ने आइन में तरमीम कर ली, इनका हक़ है या नहीं है, इस तरमीम को से डिसाइड करना अदालतों का हक़ है। आवाम का राइट है कि वो इसके ख़िलाफ़ पीसफुल मुजाहरा करे, वो कह रहे जी मैं नहीं एक्सेप्ट करता। सारी दुनिया में ऐसा ही होता है, इसलिए किसी के पास गोरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि नहीं कोई नंबर में काम, नंबर तो ऑलमोस्ट गान। बुशरा बीबी के खिलाफ जो आर्टिकल छपा उसमें इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी के खिलाफ बहुत ज़्यादा किरदार कशी की गई है। मैं मीडिया से भी अपील करूँगा कि इतने घंटों, मैं एक TV चैनल को देख रहा था, ऑलमोस्ट 9 o'clock की न्यूज़ पे 20 मिनट की उनको ने ये इशारा चलाया। वो एक बापर्दा खातून है, वो एक मजहबी खातून है, वो रोज़ा सोम और नमाज की पाबंद खातून है, और वो पर्दा करती हैं। आप लोगों ने उनकी जो तस्वीरें दिखाई हैं, आप लोगों ने उनके बारे में जो कमेंट्स किए, मैं समझता हूँ ये
फैमिली लाइफ के लिए भी बेहतर नहीं है और लोग ऐसे कमेंट भी कभी नहीं करते बावजूद इसके कि वो एक साबिका खातून अव्वल है इन सब चीज़ों को छोड़ के जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, इसको चैलेंज करेंगे। देखो वो देखेंगे जैसा भी वो आएगा, लेकिन मैंने ये कहा है कि ये जो स्टेटमेंट आई है ये बिल्कुल गलत है, झूठ पर मबनी है। वो पहले भी ऐसी झूठी खबरें आई थी और वो उससे भी इक्वट हुई, इंशाल्लाह ताला ये भी सारे गलत साबित होंगे इंशाल्लाह। ये हमारी मीटिंग है, इंशाल्लाह ताला वहाँ जाएंगे। आज वहाँ पहुँचेंगे, अवामी असम्बली भी लगाई जाएगी। मेरा ख्याल है अवामी असम्बली का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जाने को तो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।